Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are fine and spending a great time with your family at home. I'm your English teacher from Metropolitan Foundation School. This is your online class for class 3. So now let's start. It's the second assignment from month of September. In a first assignment, I explained the chapter number 9, 3 languages, and read it. I hope you all are like the story and you all are read the chapter thoroughly. So students, I hope you all are complete your copy work in a very neat and clean writing. Now we have more copy work. So first of all, we revise the story so that we easily do our copy work today. Okay students, so now let's start. Revise the story. In this story, a man, his name is Count. इस स्टोरी में एक आदमी था, उसका नाम था काउंट. काउंट लिव इन अ कोल्ड माउंटेनस कंट्री with his son and his wife. There are many happy people in the country who smiled as they worked and played. But the Count was not a happy man. Others who saw the Count's fine house would say, "There is a fine house of a fortunate man." But the Count could only see the cracks. When people saw the Count's young son toddling after his father, they said, "Oh, what a bright fellow you are." But the Count could not see this. He said to his wife, "The boy is slow." The Count was irritated when the son only played with the books. Some years later, the Count decided to send his son away to learn from a great master in South. After a year, the son returned. He said to his father, "What are the 3 things that you are most pleased to have learned?" Son says, "First, I can understand what dog says when they bark. Second, I know what birds are saying when they sing. Third, I can understand frogs." Count said, "I send you away to a great master and you come back with a head full of nonsense instead of knowledge. Get out." That night, the Count decided that he wished to never see his son again. He ordered his guard take him to the forest and kill him. But guards did not want to kill the charming young man. They said, "Just run away
and never return. For a few years, the son traveled and he had many adventures. Once, the villagers shared the gold with the son and invited him to stay, but he had not finished his journey. So, after a few days of rest, he set off again. He wanted to settle in one place. He decided to travel on an ancient city ruled by a wise leader and try to find work there. They walked for a long time by a river. When frogs were spreading the news that the wise leader of an ancient city had died, the frog song grew louder and louder as the sun drew closer to the city. As he stepped through the gate, the frogs stopped talking, the crowd stopped talking, and there was silence. It's him. He is the one. Come forward and claim your title by saying our scared word. From that day on, the sun was a voice leader to all his people and their lands. स्टूडेंट्स, इस स्टोरी में एक आदमी था जो अपने बेटे और वाइफ के साथ रहता था, लेकिन वो कभी खुश नहीं होता था। वो चाहता था कि उसका बेटा एक फ़िलासफ़र बने, लेकिन उसका बेटा हमेशा बुक से खेलता रहता था। तो एक दफ़ा उसने डिसाइड किया कि वो उसे एक बहुत अच्छे मास्टर के पास पढ़ने भेजे, लेकिन वो जब वहाँ से वापस आया तो कुछ सीख के नहीं आया। उसने 3 चीज़ें सीखी थी। फ्रॉग्स कैसे बात करते हैं, डॉग कैसे बाग करते हैं, और परिंदे जो सिंग करते हैं तो क्या कहते हैं। इसलिए काउंट ने डिसाइड किया कि वो अपने बेटे को आइंदा कभी नहीं देखेगा। इसलिए उसने अपने गार्ड को ऑर्डर किया था कि वो इसे मार दे, लेकिन गार्ड्स ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उसे छोड़ दिया जंगल में। तो जंगल से वो बहुत सारी जगहों पर गया, बहुत सारे विलेजेस में गया, बहुत सारे एडवेंचर्स देखे उसने। फिर एक एडवेंचर ऐसा हुआ कि गांव वाले उससे बहुत खुश हुए, क्योंकि वो वहाँ पर उसने कुत्तों की भौंकने को सुनकर उनकी मदद की थी। तो गांव वालों ने उसे अपने साथ रहने के लिए भी कहा, लेकिन वो वहाँ नहीं रुका था, वो चलता चला गया। फिर वो एक शहर जाना चाहता था जहाँ पर वो कुछ काम तलाश कर सके, लेकिन वहाँ जाकर वो एक लीडर बन गया, क्योंकि वहाँ के फ्रॉग्स और डव्स वगैरह सब ने जो है वो साइन दिया था कि ये लीडर है जो इस शहर का लीडर बन सकता है। जो सन था वो एक दिन एक सिटी का लीडर बन गया। इन फर्स्ट असाइनमेंट में आपका कॉपी वर्क था, डिक्टेशन वर्ड्स, वर्ड सेंटेंसेस एंड वर्ड्स मीनिंग। I hope you all are complete your work in a very neat and clean writing. So now let's start our second assignment. Second assignment copy work is question answers and exercise C. Exercise C have 2 parts, 1 and 2. Okay. Now let's start our copy work. Question answer. Question number 1 is, what 3 things did the son learn when he was sent to the great master? कौन सी 3 चीज़ें सन ने सीखी थी जब वो ग्रेट मास्टर के पास गया था? आंसर इज, द सन learned to understand the languages of dogs when they bark, the song of birds, and the language of frogs when he was sent to the great master. सन ने 3 चीज़ें सीखी थी कि जब कुत्ते भौंकते, 3 लैंग्वेजेस सीखी थी, कुत्तों की लैंग्वेज, परिंदों की और फ्रॉग्स की।
वो समझता था कि जब परिंदे सिंग कर रहे होते हैं तो वो क्या कह रहे होते हैं, जब कुत्ते भौंक रहे होते हैं तो वो क्या कह रहे होते हैं, और जब फ्रॉग्स बोलते हैं तो वो क्या कहते हैं। वो इन तीनों की लैंग्वेजेस को समझने लगा था। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 इज, व्हाई डू यू थिंक गार्ड्स डिड नॉट फॉलो देयर ऑर्डर्स? आपके ख्याल में गार्ड ने उसके ऑर्डर्स फॉलो क्यों नहीं किए थे? आंसर इज, द गार्ड्स डू नॉट follow the count's order because they do not want to kill a charming and innocent man like the sun. Guards do not follow the count's order. Guards ने ऑर्डर फॉलो नहीं किया था क्योंकि वो एक चार्मिंग और इनोसेंट लड़के को मारना नहीं चाहते थे, क्योंकि बॉय तो इनोसेंट था, मतलब उसने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया था कि जिसको मार दिया जाए, इसलिए गार्ड्स ने उनका ऑर्डर फॉलो नहीं किया था। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाट डू दे डू टू हेल्प हिम? What do they do to help him? उन्होंने उसकी मदद के लिए क्या किया? किन्होंने? यहाँ फ्रॉग्स का जिक्र हो रहा है। They sang out loudly that the new leader was coming. वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, गा रहे थे, The new leader was coming, कि नया लीडर जो है वो आ रहा है। Now come to the exercise C, words and meaning. Exercise C part 1 is, look at how these phrases are used in the story and match each to its meaning. It's about phrases. First of all, I will tell you what is phrase. Phrase क्या होता है? Phrase हम एक जुमले को कहते हैं, एक फिक्रे को कहते हैं। Phrase is a group or pairing of words in English. इंग्लिश में एक जुमले को कहते हैं फ्रेज। ओके स्टूडेंट्स, अब फ्रेज कैन बी शॉर्ट और लॉन्ग। फ्रेज जो है वो छोटा भी होता है, जुमला जो है वो छोटा भी होता है, बड़ा भी हो सकता है, बट इट डज नॉट इंक्लूड द सब्जेक्ट एंड वर्ब। इसमें वर्ब और सब्जेक्ट इंक्लूड नहीं होते। जुमला बनाने के लिए इसमें वर्ब और सब्जेक्ट का यूज़ नहीं होता। इट्स जस्ट अ सेंटेंस ऑफ इंग्लिश वर्ड्स। ओके, इसमें वर्ब और सब्जेक्ट यूज़ नहीं होता। ये एक फ्रेज, इसको हम फ्रेज कहते हैं। बेसिकली ये एक जुमला ही होता है, एक सेंटेंस ही होता है, लेकिन इसमें वर्ब और सब्जेक्ट यूज़ नहीं होते। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ मैच इट। First line is rightfully yours. Rightfully yours. हकीकतन आपका क्या हो सकता है? To demand something that is due to? No. So legally or morally belonging to you. Yours है ना आपका, तो इसका आंसर legally और morally belonging to you. ये लीगली और मॉरली आपसे बिलोंग करता है, सो इट्स राइटफुली योर्स। ओके, रनिंग द हाउस। सेकेंड वर्ड इज रनिंग द हाउस। सो यू मैच इट मैनेजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग अ होम। रनिंग द हाउस, घर को चलाना, मैनेजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग अ होम। फ्रेसेस मैच हो गए? यस, दोनों सेम मीनिंग्स हैं, दोनों के बस वर्ड्स मुख्तलिफ इस्तेमाल किए गए हैं। क्लेम योर टाइटल। क्लेम योर टाइटल, सो मैच इट टू डिमांड समथिंग दैट इज ड्यू टू। टू डिमांड समथिंग दैट इज ड्यू टू।
राइटफुली योर्स बिल्कुल तुम्हारा, रनिंग द हाउस घर चलाना, और क्लेम योर टाइटल मीन्स एस अपने उन्मान का दावा करना। सो इन अदर साइड टू डिमांड समथिंग दैट इज़ ड्यू टू यू, किसी ऐसी जगह का मुतालबा करना जो आपकी वजह से हो, किसी ऐसी चीज़ का मुतालबा करना जो आपकी वजह से हो। सेकेंड वन इज़ लीगली और मॉरली बिलोंगिंग टू यू, जो कानूनी और इखलाकी तौर पर आपका हो, आपसे ताल्लुक़ रखता हो। मैनेजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग अ होम, घर का इंतज़ाम संभालना, इंतज़ाम चलाना। सो स्टूडेंट्स, वी मैच दिस फ्रेजेस बिकॉज राइटफुली योर्स मीन्स बिल्कुल तुम्हारा, मतलब आपका। तो लीगली और मॉरली बिलोंगिंग टू यू मीन्स जो लीगली और मॉरली आपसे बिलोंग कर रहा है तो वो भी आपका ही है ना, तो इसलिए हमने ये दोनों फ्रेजेस मैच कर दिए। नाउ रनिंग द हाउस मीन्स घर चलाना, मैनेजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग अ होम, ये भी है घर का इंतज़ाम चलाना, घर चलाना, एक ही बात है ना। यस, सो दीज सेंटेंसेज आर सेम। क्लेम योर टाइटल, दिस फ्रेज इज क्लेम योर टाइटल टू डिमांड समथिंग डेट इज़ ड्यू टू यू। क्लेम योर टाइटल मीन्स दावा करना। इसी तरह डिमांड समथिंग, डिमांड का क्या मतलब होता है, दावा करना। तो डिमांड समथिंग डेट इज़ ड्यू टू यू, ऐसी चीज़ का मुतालबा करना जो आपकी वजह से हो। ओके, नाउ लेट्स नेक्स्ट एक्सरसाइज। इट्स एक्सरसाइज 2। फाइंड आउट डिफरेंट ट्रेसेस इन द स्टोरी दैट रेफर्स टू टाइम फॉर एग्जाम्पल फॉर अ फ्यू ईयर्स। इसमें इस स्टोरी में से हमें कुछ फ्रेसेस सर्च करने हैं, कुछ फ्रेसेस फाइंड आउट करने हैं जो टाइम शो करते हों। कुछ फ्रेसेस बताने हैं जो टाइम शो करते हों, जिसमें कोई सब्जेक्ट या वर्ब यूज़ ना हुआ हो। जैसे फॉर एग्जांपल अ फ्यू ईयर चंद साल बाद। सो नेक्स्ट, मैंने सर्च किया इसमें। नंबर 1 इज़ सम ईयर्स लेटर, कुछ साल बाद। कुछ टाइम, इसमें कुछ वर्ब और सब्जेक्ट तो यूज़ नहीं हो रहा ना, सम ईयर्स लेटर, कुछ साल बाद। सेकेंड वन इज़ अ लॉन्ग टाइम मीन्स बहुत टाइम बाद, बहुत देर बाद। इसमें भी कोई वर्ब या सब्जेक्ट यूज़ नहीं हुआ, इसमें कोई काम नहीं है, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई पर्सन यूज़ नहीं किया गया। इसमें सिर्फ एक सेंटेंस है अ लॉन्ग टाइम। हमारी समझ में आ रहा है कि इसका मतलब है काफ़ी टाइम बाद। ठीक है, मतलब एक सेंटेंस जो है वो हमारी समझ में आ रहा है, क्लियर है। नाउ थर्ड वन इज़ आफ्टर अ ईयर, एक साल बाद। सेंटेंस इज़ कंप्लीट, एक साल बाद। फिक्रा मतलब कंप्लीट है, समझ आ रहा है कि एक साल बाद का जिक्र हो रहा है कुछ, तो इसमें भी है वर्ब और सब्जेक्ट यूज़ नहीं किया गया। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर कॉपी वर्क। I hope you do in your copy in a very neat and clean writing. Don't forget to draw a margin, write the date, and do in a very neat and clean writing. Okay, if you have any problem regarding to this video, you can ask me on WhatsApp. Thank you. Allah Hafiz.